Standard 11 BA chapter number 2 video 1. In this chapter we have to study different auxiliary services to trade. In chapter number 1 the concept of commerce is that commerce means trade and auxiliary services to trade. In that auxiliary services, insurance, postal services, warehouse, transportation, these all services we have to learn in chapter number 2. In detail regarding these all services we study in this chapter. So first of all, insurance. The concept of insurance we have to learn, and the question is that what is insurance? Explain the principles of insurance. Meaning, insurance refers to that written contract. Now this is very important. Written contract. When you go to take any insurance, at that time insurance company and between you there is a contract, that is written contract or agreement between two parties. Now which two parties? One is insuring, second is insurer. One is insuring, second is insurer. Insuring means you can say customer and insurer means insurance company. Written contract or agreement between two parties through which the insuring means simple, you can say customer pays premium. Customer pays premium and as against getting an undertaking from the insurer means insurance company that now this is very important. He will be compensated. He will be means customer will be compensated as per the risk covered and amount decided for the financial loss. In this meaning, there are two parties, insurer and insurer. Insurer has to pay certain fixed amount as a premium, and after paying premium, he gets undertaking from insurer, means insurance company. Insurance company gives undertaking that they will compensate it as per the risk covered. Risk covered means there are lots of risk. For example, natural and man-made risk, and amount decided for the financial loss. Whatever amount decided by insurance company at a time of when you go to insurance company for your damage, at that time insurance company decide the financial loss and they compensate for that. So this is known as insurance. In insurance, these three things are very important. One is objective of insurance. The main objective of insurance is cannot be making profit, only and only compensation for financial loss. If you are taking an insurance at that time, only and only you are taking insurance for compensation for financial loss. If you want to make profit, then it is not possible in insurance. Insurance company only and only compensate for your financial loss. Second, the roots of insurance are connected with society. These concepts come from society. And third, insurance contract in a written form is known as insurance policy. When you are taking insurance, at that time there is a written agreement, and the written agreement is known as insurance policy. In this policy, name of insurer, amount, what is the amount of premium, which date you have to pay premium,
this all things are mentioned in this written agreement. So simply it is known as insurance policy. So students, this is the concept, or you can say meaning. Now the principles of insurance. There are total 4 principles. One is principle of utmost good faith, second principle of indemnity, third principle of insurable interest, and last principle of subrogation. So principle of utmost good faith, ये प्रिंसिपल क्या है तो ध्यान रखना, जब भी आप इंश्योरेंस करवाने जाते हो तो उसके अंदर जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवाते हो उसके रिगार्डिंग फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी. Parties involved in the insurance contract should have mutual and complete faith. First of all, you both parties have complete and mutual faith in each other. Second, regarding insurance product, both the parties provide information even if not asked by either parties. Both should provide. Insurer and insurer both should provide information of insurance product. For example, if insurer takes insurance of vehicle, at that time insurer should provide final and full information of vehicle to insurance company. The same way insurance company should provide information regarding vehicle policy. जब भी आप इंश्योरेंस करवाने जाते हो तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सब कुछ चीजें आपको एक दूसरे को बता देनी चाहिए. आपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया तो व्हीकल के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है तो इंश्योरेंस लेने वाले को इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरी को बता देना चाहिए. इफ यू आर टेकिंग इंश्योरेंस ऑफ योर हेल्थ मींस मेडिक्लेम, अगर आप मेडिक्लेम करवाने जाते हो at that time your body is insurance product and regarding your body each and everything you have to inform to insurance company. Clear? And last, any insurance agreement entered not having necessary information amounts to fraud and policy stands null and void. This is very important. आप जब भी इंश्योरेंस करवाओ अगर आपने कुछ चीजें नहीं बताई है, आपने कुछ चीजें छिपाई है तो उसको क्या बोला जाएगा? फ्रॉड बोला जाएगा और पॉलिसी क्या हो जाएगी? नल एंड वॉइड हो जाएगी. At that time, insurance company cannot give you compensation for your financial loss. Students, this is very important. अगर आपने कुछ बातें इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई थी और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चला, at that time insurance company cannot give compensation and also they cannot given back your premium amount which you have paid to insurance company. आपने जो भी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा प्रीमियम के तौर पे लिया था वो भी आपको नहीं मिलेगा. So this is very important principle, principle of utmost good faith. ये प्रिंसिपल हमें ऐसा समझाता है कि जब भी हम इंश्योरेंस करवाने जाए तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ चीजें सही बता देनी चाहिए एक दूसरे को. अगर आपने कुछ चीज नहीं बताई है तो वो बाद में पता चले तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. दैट इज नॉन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल. एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट कंपनसेट एंड कैन नॉट गिव यू द प्रीमियम बैक. So this is your first principle. Now second, principle of indemnity. Principle of indemnity. This principle decides how much the insurance company will have to pay to the insuree in the event of loss incurred. Very important. ये प्रिंसिपल ऐसा डिसाइड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा कंपनसेशन के तौर पे इंश्योरी को देगी. क्लियर? सो इवेंट ऑफ लॉस इनकर्ड, जब लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा आपको देगी वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डिसाइड करता है. ओनली कंपनसेशन इंश्योरी गेट्स ही कैन नॉट अर्न प्रॉफिट.
आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन ही मिलेगा। आप अगर प्रॉफिट कमाने की कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो तो वो गलत है। आई हैव क्लियर्ड इन कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया कि आपका इंश्योरेंस करवाने का ओनली एंड ओनली एम क्या होता है, नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट, ओनली कंपनसेशन फॉर फाइनेंशियल लॉस, ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल लॉस। आपका जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसका ही पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। देयर कैन बी आल्सो फिजिकल लॉस, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया व्हीकल, तो व्हीकल को तो नुकसान हुआ, लेकिन आपके मान लो कुछ फ्रैक्चर हो गया तो क्या हो गया, फिजिकल लॉस हो गया। मेंटल लॉस भी कभी हो जाता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देने वाली। ओनली एंड ओनली इंश्योरेंस कंपनी गिव्स यू द कंपनसेशन फॉर फाइनेंशियल लॉस। ओके, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में हमें पता है कि मैं इंश्योरेंस करवाता हूं तो मेरा एम क्या होगा, ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल लॉस का कंपनसेशन। मुझे इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाना, कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरी हैज टू टेक फुल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इफ ही टेक्स lower value than original value, it is implied that he will be proportionately get a less amount and part of loss will have to be borne by him. This is very very important in this principle of indemnity. First of all, you have to take full amount of your इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपको आपकी इंश्योरेंस प्रोडक्ट का फुल अमाउंट का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अगर आप जानबूझकर कम पैसे का इंश्योरेंस करवाते हो, then it is implied that he will be means customer proportionately gets a less amount and part of loss will have to be borne by him, means customer। अगर कस्टमर कम पैसे का इंश्योरेंस करवाएगा तो उसको प्रोपोर्शनेटली जो लॉस है वो खुद बेयर करना पड़ेगा। उसको समझने के लिए देयर इज वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ कार, आपके पास कार है, उसकी वैल्यू है 5 लाख, द वैल्यू ऑफ कार इज 5 lakhs। As per this principle, you have to insure your car for full amount। 5 लाख की कार है तो 5 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अगर 5 लाख की कार थी, 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया और मान लेते हैं कि कार का एक्सीडेंट हो गया, एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनी गिव्स यू फुल अमाउंट ऑफ ₹5 lakhs because you have taken insurance of full amount. Now second, the same situation, some changes there, car value 5 lakhs, but the owner of that car has taken insurance for rupees only 3 lakhs। 5 लाख की कार का इंश्योरेंस कितने का करवाया, 3 लाख का करवाया। अब कार का एक्सीडेंट हुआ, कार टोटली डैमेज हो गई, कंप्लीट लॉस हो गया कार का। एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनी ओनली एंड ओनली गिव ₹3 lakhs बिकॉज इंश्योरेंस कितने का करवाया था, 3 लाख का करवाया था, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी, 3 लाख ही देगी। तो समझ गए यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन क्या हो गई, मैंने 2 लाख रुपए का कम इंश्योरेंस करवाया तो 2 लाख का लॉस ओनर को खुद बेयर करना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड थर्ड सिचुएशन, 5 लाख की कार है, आपने 3 लाख का इंश्योरेंस करवाया। 5 लाख की कार थी, 3 लाख का इंश्योरेंस करवाया, कार को एक्सीडेंट हो जाता है। एट दैट टाइम पार्शियल लॉस इज देयर, नॉट फुल डैमेज, प्लीज कंसीडर, नॉट फुल डैमेज, ओनली पार्शियल लॉस, और उसकी अमाउंट हुई लॉस की 2 lakhs। 2 लाख का नुकसान हुआ कार का। आपकी 5 लाख की कार, इंश्योरेंस करवाया 3 का, कार को एक्सीडेंट हुआ, 2 लाख का नुकसान हुआ। At that time, insurance company gives proportionately amount 1,20,000 to the owner of that car।
remaining 80,000 will be borne by the owner because as per this principle अगर आपने कम पैसे का इंश्योरेंस करवाया है तो यहाँ पे इम्प्लॉयड कंडीशन हो जाती है। इन सिंपल वर्ड आपकी जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की वैल्यू है उसके जितने परसेंटेज का आप इंश्योरेंस करवाओगे ना उतने परसेंटेज ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन देगी। अगेन आई क्लियर, आप जितने परसेंटेज का इंश्योरेंस करवाओगे उतना परसेंटेज ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन के तौर पे देगी, बाकी का परसेंटेज आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने लास्ट सिचुएशन बताई, कार तो 5 लाख की थी तो इंश्योरेंस 5 का करवाया होता तो 2 लाख का नुकसान हुआ ना तो पूरा 2 लाख मिल जाता, लेकिन यहाँ पे कार 5 की थी, इंश्योरेंस 3 का करवाया, इसलिए प्रोपोर्शनेटली 60% अमाउंट, 2 लाख का नुकसान हुआ तो 2 लाख का 60% कितना होगा 1,20,000, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, रिमेनिंग 80,000 आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी लाइफ प्रीशियस है, हमारी लाइफ प्रीशियस है, हमारी लाइफ की वैल्यूएशन हम नहीं कर सकते, कोई भी आदमी अपनी लाइफ का वैल्यूएशन नहीं कर पाता। ये प्रिंसिपल कहां पे अप्लाई होगा, जिसकी वैल्यूएशन आप कर सको, समझ लेना। इन होल वर्ल्ड ओनली एंड ओनली लाइफ, हमारी लाइफ ही ऐसी है कि जिसका वैल्यूएशन हम नहीं कर सकते, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे ये प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करती बिकॉज लाइफ इज प्रीशियस। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या समझाता है, ये प्रिंसिपल हमें ऐसा समझाता है कि आपको आपकी इंश्योरेंस प्रोडक्ट का फुल अमाउंट का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अगर आपने कम पैसे का इंश्योरेंस करवाया, एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट गिव यू फुल कंपनसेशन फॉर योर लॉस। नाउ थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दिस इज आवर थर्ड प्रिंसिपल। The insurer must have financial interest, very important. The insurer must have financial interest in the product insured. आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपकी ही एसेट, आपकी ही लाइफ में होना चाहिए। ये प्रिंसिपल हमें ऐसा सिखाता है। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल है। द ओनर ऑफ हाउस has financial interest in a house while a tenant of the house does not have financial interest. Yes, आपको पता चलना चाहिए कि जो ओनर है, घर का ओनर, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसके ही घर में होगा, लेकिन जो टेनेंट है ना वो टेनेंट का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मान लो अगर घर को अर्थक्वेक से नुकसान हो जाता है, कोई ना कोई नुकसान हो गया घर को, तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल लॉस किसको होगा? ओनर को ही होगा ना। टेनेंट तो दूसरी जगह रहने चला जाएगा, तो टेनेंट को कोई लेना देना नहीं है। तो सेम वे, तो इसको समझो। दूसरा एग्जांपल, कार है आपके पास, तो कार जब तक है आपके पास तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपका आपकी ही कार में रहेगा। अगर आप ऐसा सोचो कि मेरे नेबर के पास कार है तो उससे आपको कोई एडवांटेज है? नहीं है। अगर उनकी कार को एक्सीडेंट हो गया तो आपको लॉस होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो ये प्रिंसिपल हमें ऐसा सिखाता है कि ओनली एंड ओनली योर इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज इन योर लाइफ, इन योर एसेट्स। एंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इंश्योरेंस product is fully damaged. When insurance product is fully damaged, very important, no? Fully damaged. When insurance product gets fully damaged and when the insurance company pays compensation, then the fully damaged products will be with the insurance company.
समझ लो, आपने इंश्योरेंस करवाया, फॉर एग्जांपल आपने कार का इंश्योरेंस करवाया, तो कार का इंश्योरेंस करवाया है, कार को मान लो एक्सीडेंट हो गया और कार फुल्ली डैमेज हो जाती है, कार का क्या हो गया, फुल्ली डैमेज हो गया, मींस आपकी इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या हो गई, फुल्ली डैमेज हो गई। इंश्योरेंस करवाया था तो आपने क्या किया, क्लेम किया, क्लेम किया तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने क्लेम के हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन था उस हिसाब से आपकी कार 5 लाख की थी, तो आपको मान लो डेप्रिसिएशन कट करके 4.75 लाख दे दी। तब उसके बाद जो कार है ना, वो कार फुल्ली डैमेज कार हो गई, वो कार की ओनरशिप किसके पास हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी, वो आपकी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, मैंने पहले भी समझाया, आपका इंश्योरेंस करवाने के पीछे एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्या था, ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल लॉस। आपको आपकी कार के 4,75,000 मिल गए। अब वो जो स्क्रैप हो गई ना कार, वो कार की ओनरशिप आपकी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, तो समझ लेना, वो स्क्रैप्ड वाली कार थी ना, उसको भी आप अगर सेल करने जाओ ना तो पैसे मिलते हैं उसके, वो कोई बच्चों को खेलने वाली तो गाड़ी नहीं थी, है ना, वो गाड़ी आप सेल करने जाओ, भले वो स्क्रैप्ड हो गई है तो भी उसके 50,000 ऐसे मिल जाएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या मानती है कि आपको 4,75,000 भी मिले और आप 50,000 उसका स्क्रैप का भी पैसा लो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, 4.75 प्लस 0.50, तो 5,25,000 आपको मिल गए, तो ऐसा तो थोड़ी हो सकता है। और मैंने पहले भी आपको समझा दिया था कि आपका इंश्योरेंस लेने का एम क्या होता है, ओनली फाइनेंशियल लॉस, है ना, यहाँ पे प्रॉफिट कमाना तो आपका एम है ही नहीं। तो ये प्रिंसिपल हमें ऐसा समझाता है कि जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपको आपकी फुल डैमेज इंश्योरेंस प्रोडक्ट का पैसा दे दे, उसके बाद उसकी ओनरशिप किसकी हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। व्हाई, बिकॉज जब भी आदमी की डेथ होती है तो उसकी जो डेड बॉडी है ना, वो डेड बॉडी किसको मिलती है, उनके जो भी हेयर्स है, उनके जो भी रिलेटिव्स है उसको मिलेगी। इंश्योरेंस कंपनी इसके अंदर भी वहां ये उनकी डेड बॉडी लेने वाली नहीं है, समझ गए आप। तो लाइफ इंश्योरेंस, इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, these two principles, principle of indemnity and principle of subrogation, these two principles are not applicable in case of life insurance, please understand। क्योंकि लाइफ प्रीशियस है, मैंने पहले भी समझाया, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी किसको एप्लीकेबल है, जिसकी वैल्यू आप निकाल सको। लाइफ प्रीशियस है, उसकी कोई वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी नहीं लगेगा और प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन भी लाइफ इंश्योरेंस को लगने वाला नहीं है। दिस इज टोटल 5 मार्क्स आंसर, 5 मार्क में पूछा जाता है। व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। पहले मैंने मीनिंग समझा दिया, मीनिंग जो है उसके अंदर ये ध्यान रखना है, रिटन एग्रीमेंट क्यों बोला जाएगा, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस करवाने जाते हो तो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एग्रीमेंट होता है, सिग्नेचर्स होते हैं, और इसलिए उसके बाद आपको पॉलिसी दी जाती है। मैंने आपको समझा दिया, देखो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन रिटन फॉर्म इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। पॉलिसी में क्या होता है, सबसे पहले पॉलिसी का नाम होता है, उसके बाद पॉलिसी लेने वाले का नाम, कितना प्रीमियम उसको पे करना है, उसकी अमाउंट क्या है, कब पे करना है, लास्ट प्रीमियम कब पे करोगे, एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी कितना पैसा मिलेगा, वो सब उसके अंदर लिखा होता है। यहाँ 2 पार्टीज आपको पता ही है, आपको इंश्योरेंस कंपनी ऐसे तो इंश्योरेंस देने वाली नहीं है, पहले प्रीमियम आप पे करो और प्रीमियम पे करने के बाद आपको अंडरटेकिंग दिया जाएगा, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। कंपनी क्या अंडरटेकिंग देती है कि आपको कंपनसेशन दिया जाएगा एज पर रिस्क कवर, जो भी पॉलिसी में लिखा है वो, और अमाउंट डिसाइडेड। अब तो पता चल गया, हमने पढ़ा सेकंड प्रिंसिपल में कि जब आप क्लेम करते हो तो कितना पैसा मिलेगा, वो ये प्रिंसिपल हमें समझा देता है। तो ये पूरा आंसर है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। अभी आगे हमें द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना है।
देन IRDA भी पढ़ना है, दैट वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो ये वीडियो लेक्चर में इतना हम रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। ओके, गुड बाय, जय श्री कृष्ण।